Subject English Chapter number 1 The Mystery of the Haunted House. Mystery means रहस्य. Haunted house means प्रेतवादित घर. प्रेतवादित घर का रहस्य. राजा was overjoyed. Overjoyed means बहुत खुश. राजा बहुत खुश था. Oh, it will be a grand holiday then. Grand means भव्य. Holiday means छुट्टी. तो ये बहुत ही भव्य छुट्टियां होने वाली हैं. He exclaimed at the top of his voice. वह अपनी काफी तेज आवाज में चिल्लाता है. Exclaimed means चिल्लाना. Hills and valleys, rivers and lakes. Hills means पहाड़ियाँ, valleys means घाटियाँ, river means नदियाँ, lakes means झीलें. Sound fun. यह सारी बातें सुनने में काफी अच्छी लग रही हैं. But you've gone there only once and that too when you were a baby. Said Lily. लिली कहती है, पर तुम बहुत छोटे थे जब तुम वहां पर गए थे. His younger sister. लिली कौन है? राजा की छोटी बहन है. Who was not so enthusiastic about visiting their father ancestral home in Nandi. And enthusiastic means उत्साही. Visiting means घूमना. Ancestral means पैतृक. पर जो लिली है वो विजिटिंग करने में यानी कि घूमने में बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है. Subject English Chapter number 1 The Mystery of the Haunted House. Second para. Oh, that doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Sure. Sure means जरूर. Sure, I was a baby then, but I still remember our long walk in the hill and boating in the Chani River. राजा बोलता है, उस टाइम पे मैं जरूर बच्चा था, पर मुझे याद है कि किस तरह हम पहाड़ों पर पैदल चले थे और हमने चांदनी रिवर में बोटिंग की थी. Still means फिर भी. Remember means याद रखना. Long walk means पैदल यात्रा. I saw a peacock for the first time in my life. राजा कहता है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मोर को देखा था. It was not like the skinny peacock you see in the zoo. वह उस तरह का पतला मोर नहीं था जो हम जू में देखा करते हैं. Skinny means पतला. He did a funny peacock dance. वो काफी हंसी वाला डांस कर रहा था. Lily could not control her laughter. लिली अपनी हंसी को रोक नहीं पाती है. Control means रोकना. Laughter means हंसी. All the same, she was not happy. फिर भी वह खुश नहीं होती है. Happy means खुश होना. She had heard stories about the ancestral house. उसने काफी ज्यादा उस घर के बारे में कहानियां सुन रखी थी. It was a huge house with plenty of trees all around and a river running by, ideal for a holiday. उसने ये सुन रखा था कि वह घर काफी बड़ा है. Huge means बड़ा. Plenty means बहुत सारे. उसने ये सुन रखा था कि वह घर काफी बड़ा है और उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं. All around means चारों तरफ. Ideal for a holiday. और वह छुट्टियों के मुताबिक काफी अच्छी जगह है. But people said that it was haunted and nobody stayed there. But वहाँ के लोग कहते हैं कि वह घर haunted है और वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है. Stayed means रुकना. It was looked up. An old caretaker looked after it. वहाँ की देखभाल एक बूढ़े केयर टेकर के द्वारा की जाती है. केयर टेकर मीन्स जो देखभाल करने वाला होता है. Suddenly, young Ajay joined them. अचानक से अजय वहां पर आ जाता है और उनको ज्वाइन कर लेता है. Suddenly means अचानक से. He was delighted to hear about the visit to Nandi. वो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है कि वो घूमने नंदी जाएंगे. Delighted means खुश होना. Ajay was their youngest brother, aged 6.
अजय लिली का और राजा का छोटा भाई है और उसकी एज 6 years है। I have heard that it is a nice place where plenty of fruits grow. अजय कहता है कि मैंने सुना है कि वो काफी अच्छी जगह है और वहां पर काफी सारे फल होते हैं। Daddy told me that you get good pineapple and sweet gooseberries in plenty. डैडी कहते हैं कि आपको वहां पर अच्छे पाइनएप्पल एंड मीठे गूसबेरीज मिलेंगे। He also told me that on one mango tree such big mangoes grow that if you eat one. और पिताजी ये भी कहते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा मैंगो का ट्री भी है जिस पर काफी बड़े मैंगो होते हैं। You don't have to eat lunch. वो ये भी कहते हैं कि अगर आप एक मैंगो खा लोगे तो आप लंच नहीं करोगे। I'll climb that mango tree, sit on its branches, pluck a ripe mango and I won't climb down until it is dark. अजय कहता है कि मैं उस मैंगो के ट्री के ऊपर बैठ जाऊंगा और पके हुए आम को तोड़ूंगा। राइप मीन्स पका हुआ। पके हुए आम को तोड़ूंगा और मैं तब तक नीचे नहीं आऊंगा जब तक अंधेरा ना हो जाए। Yes, yes, लिली said jokingly. हाँ हाँ क्यों नहीं। jokingly means मजाक में। लिली कहती है Why should you come down at all? हाँ हाँ तुम नीचे क्यों आओगे। You can very well sleep on that tree. तुम उसी पेड़ पर अच्छी तरह से सो जाना। And then at midnight, midnight means आधी रात, the ghost which haunt that house will keep you good company. और आधी रात में जो भूत उस घर में रहता है तुम्हारे पास आकर तुम्हारा अच्छा साथी बनेगा। घोस्ट मीन्स भूत, हंट मीन्स बसेरा, गुड कंपनी मीन्स अच्छा साथी। नो घोस्ट विल कम नियर मी। नहीं भूत मेरे पास नहीं आ सकता। आई विल किल दैम। मैं उसको मार दूंगा। आई एम सो स्ट्रॉन्ग। मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। डोंट बोस्ट। बोस्ट मीन्स बीइंग, लंबी लंबी बातें करना। डोंट बोस्ट सेड राजा। राजा कहता है ज्यादा लंबी बातें मत करो। वी नो हाउ बोल्ड यू आर। हमें पता है कि तुम कितने हिम्मत वाले हो। बोल्ड मीन्स साहसिक यानी कि हिम्मत वाला। When mummy told you the story of Will o' the Wisp, you didn't sleep that night and you wanted her to sleep by your side. एक बार मम्मी ने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी और तुम उसे सुनकर इतने ज्यादा डर गए थे कि तुम चाहते थे कि मम्मी तुम्हारे पास में सोएं। Wanted means चाहना। That was so long. वह बहुत समय पहले की बात है। नो नो इट वॉज ओनली 6 months ago. नहीं नहीं ये सिर्फ केवल 6 महीने पहले की बात है। 6 months is so long ago when I was very young. 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं और मैं उस समय काफी छोटा था। Their school closed for summer vacation on a Friday. शुक्रवार के दिन हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, समर वेकेशन मीन्स गर्मी की छुट्टियां। दे स्टार्टेड फॉर नंदी ऑन संडे। तो हम वहां पर नंदी पर संडे को जाएंगे। देयर वॉज ओनली 1 bus टू नंदी एट 2 PM. नंदी में केवल एक ही बस जाती है, वो भी 2 PM पर। सो आफ्टर लंच दे बोर्डेड द बस। दिन के खाने के बाद वो बस पर सवार होंगे। बोर्डेड मीन्स सवार होना। द सर्वेंट वॉज आस्क्ड टू गिव दैम सम पैक्ड फूड फॉर देयर डिनर. उनके घर के सर्वेंट ने उनसे पूछा क्या वह कुछ खाने के लिए सामान बांध सकता है। रात के खाने के लिए सर्वेंट मीन्स नौकर। He was to follow them after locking up the house the next day. और वह उनके जाने के बाद दूसरे दिन घर को लॉक करके दूसरे दिन रवाना होगा। The journey in the old bus was pleasant. Journey means यात्रा, pleasant means सुहानी। यह जर्नी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी।
They had to pass through a dense forest. वो एक घने जंगल के पास से गुजर रहे थे. Pass means गुजरना. Dense forest means घना जंगल. And on both sides of the road there were tall teak and bamboo trees. और रोड के दोनों तरफ काफी घने जंगल थे और टीक के और बैम्बू के काफी बड़े बड़े पेड़ दोनों साइड नजर आ रहे थे. When they started on their journey, the sun was right overhead. जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, सूरज उनके सर के ऊपर आ चुका था. जर्नी मीन्स यात्रा, ओवरहेड सर के ऊपर. It was scorching hot. यह गर्मी बहुत ज्यादा झुलसा देने वाली थी. There was not much wind, but as they entered the forest, it became quite cool. वहां पे बहुत ज्यादा हवा नहीं चल रही थी, पर जैसे ही उनकी एंट्री जंगल में हुई, काफी ठंडी हवा चलने लग गई. They crossed the forest through several hairpin bends and came down to a plateau. उन्होंने काफी घुमावदार रास्ते से जंगल की यात्रा तय की और एक प्लेट्यू पर आ गए. The sun had set by them then and the moon appeared. धीरे धीरे सूरज डूबता चला गया और चांद दिखाई देने लग गया. Moon appeared means चंद्रमा का दिखाई देना. A light stretched out below them, shimmering in the moonlight, then thrown over the trees above and behind them. झील चारों तरफ फैली हुई दिखाई दे रही थी और चांदनी रात में वह झील काफी चमक रही थी. The sky was navy blue and the trees seemed to be waving their branches at them. आसमान का कलर नेवी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था और जो ट्रीज की शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, वो काफी लहराती हुई आसमान में दिखाई दे रही थी. Oh, it's great! exclaimed राजा. Daddy, we should have come there before and more often. राजा चिल्लाते हुए कहता है, ग्रेट एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड मीन्स चिल्लाना. कि पापा ये जगह काफी सुंदर है, हमें यहाँ और पहले भी आना चाहिए था. वेट. वेट मीन्स रुको. टिल यू रीच द प्लेस बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन. उसके फादर बोलते हैं तुम्हें उस जगह पर पहुंचने से पहले अपनी कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए. प्लेस मीन्स जगह, फॉर्मिंग मीन्स रूप देना, ओपिनियन मीन्स राय. Our ancestral house, though big, is old fashioned. आपका जो ancestral house है वो काफी बड़ा है और old fashion है. Old fashion means काफी पुराना. You will soon get fed up. तुम वहां पर परेशान हो जाओगे. You will miss your friends. तुम वहां पर अपने दोस्तों को याद करोगे. Moreover, the village is without electricity. और उस गांव में बिजली भी नहीं होती है. But that doesn't matter. पर ये बातें कोई मायने नहीं रखती. We have Petromax lantern. हमारे पास Petromax लालटेन है. Lantern means लालटेन. Which give out bright light. जो हमें बहुत तेज रोशनी देगा. There are no fans but we don't need a fan there. वहां पर कोई पंखा भी नहीं है, लेकिन हमें वहां पर किसी भी फैन की जरूरत नहीं पड़ेगी. Nature provide us with cool breeze day and night. कुदरत. नेचर मीन्स कुदरत. हमें दिन न रात ठंडी हवा देती रहती है. वहां पर उस जगह पर काफी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं. That doesn't matter, said Lily. लिली कहती है ये बातें कोई मायने नहीं रखती. But I hear that it is a haunted house. लेकिन मैंने सुना हुआ है कि वो एक घर भूतिया है. Some people say so. कुछ लोग ऐसा कहते हैं. I haven't seen any though generally. पर मैंने ऐसा कुछ वहां पे देखा नहीं और ना मैंने ऐसा कुछ सोचा है. We keep the first floor room locked. पर हम पहली जो फ्लोर है, पहली मंजिल है, उसको बंद करके रखते हैं. The first floor is supposed to be haunted. ऐसा मानना है कि पहली जो फ्लोर है शायद वो भूतिया है. I shall catch the ghost, बोस्टेड राजा. राजा बोलता है मैं उस भूत को पकड़ लूंगा.
एंड आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन द फर्स्ट फ्लोर टू नाइट, और मैं उस जगह पर आज रात में सोने वाला हूँ। वेल थिंक अबाउट दैट लेटर, हम ये सारी बातें बाद में सोचेंगे। लेटर मीन्स बाद में। सेड हिज मदर, उनकी मम्मी कहती हैं। फर्स्ट लेट अस रीच देयर, पहले हम वहां पहुंच जाएं। द बस रम्बल्ड, बस में से आवाज आने लग जाती है। रम्बल्ड मीन्स धीरे धीरे आवाज आना। ओवर ए स्मॉल ब्रिज, धीरे धीरे आवाज करती हुई बस छोटे से ब्रिज से गुजरने लग जाती है। इट मेड अ क्लैंगिंग साउंड, और ये एक धीरे धीरे झनकार वाला साउंड था। क्लैंगिंग मीन्स झनकार वाला साउंड। बिलो दे कुड सी द लाइट ग्रीन वाटर ऑफ द चांदनी रिवर, उन्होंने एक हरी सी लाइट देखी और वो चांदनी रिवर की लाइट थी। उस नदी का पानी क्रिस्टल क्लियर एंड क्लीन, जो कि शीशे की तरह साफ दिख रहा था। A cool breeze from the river blew gently and they felt quite refreshed. उस नदी पर से काफी ठंडी बहती हुई आ रही थी और वो हवा उनको फ्रेश यानी कि रिफ्रेश कर रही थी, यानी कि ताजा कर रही थी। The bus crossed the bridge and stopped. बस उस ब्रिज पर से गुजरती हुई निकल जाती है और आगे जाकर रुक जाती है। They got off and their luggage was also taken down. वह सभी खुद भी उतर जाते हैं और अपना सामान भी नीचे उतार लेते हैं। Got off means उतरना, luggage means सामान।